that is about USCPA. تو یہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن رکھتی ہے USCPA، اور اس کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ گلوبل ہے، جس کی وجہ سے یہ CPA کو پریفر کیا جاتا ہے کہ why this CPA studies should be انڈرٹیکن، اور اس کی طرف ہم کیوں اپنی توجہ لے کر جائیں. تو یہ CPA کی انفیکٹ امریکن کوالیفیکیشن ہے، اور امپورٹنس اس کی یہ بنتی ہے کہ جو CPA جو امریکہ بیسڈ ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ڈفرینٹ کنٹریز میں کام کر رہی ہیں، ایون پاکستان کے اندر بھی، یا ان کی سبسیڈریز جو ہیں ہمارے پاکستان میں جو کام کر رہی ہیں، وہاں پر اس کی ایکسیپٹنس ہے، اور پیپل اوور دیئر are hired جو CPA ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ جاب ملتی ہیں. یا پھر کچھ ایسی MNCs جو کہ US کیپٹل مارکیٹ سے منی ریز کرتی ہیں، یا آڈیٹرز جو ان ملٹی نیشنل کمپنیز کے آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر CPAs کی کھپت ہوتی ہے. تو being a CPA you have a bigger ocean to swim and unlock doors to international markets جو ہیں وہ آپ کے پاس ہوتی ہیں، اور there's a wide array of opportunities جس میں کہ that open up to you once you are a qualified CPA. And all US corporations having office in Middle East and Far East in fact وہ CPAs کو جو ہیں وہ ہائر کرنے کے لیے کین ہوتی ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن رائز ہوتا ہے عموماً کہ وائی USCPA، اس کو لوکل پاکستان میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اویلیبل ہے، مینجمنٹ اکاؤنٹنسی اویلیبل ہے، پبلک فائنینس اکاؤنٹنٹس اویلیبل ہیں، تو کیوں ہم USCPA کی بات کر رہے ہیں؟ اور اسپیشلی when like myself and Maqbool Saab, we both are like ICAP member, or why CPA US like is being focused over here for further studies. The thing is that there are less number of examination papers here. This is the qualification. آپ compare جب کرتے ہیں chartered accountancy کے ساتھ، 21 examination papers to be taken by the students. لیکن جب ہم CPA کی بات کرتے ہیں تو there are only 4 examination papers جو کہ ہمیں جن میں اپیئر ہونا ہوتا ہے اور پاس کرنا ہوتا ہے. دین اس میں بالکل نیڈفل نالج ہوتا ہے جس کے اوپر کے فوکس کر رہے ہیں. ہمیں کوئی فالتو اسٹیٹسٹکس نہیں پڑھنی، ہمیں کوئی فالتو بیہیویئرل اسٹڈیز نہیں پڑھنی، کوئی فالتو سبجیکٹ نہیں پڑھنا. ٹو دا پوائنٹ اکاؤنٹنگ، آڈیٹنگ، ریگولیشنز، ٹیکسیشنز، بزنس انوائرمنٹ، جو کہ ایک بیسیکلی نیڈفل نالج ہے فار اکاؤنٹنٹس اور آڈیٹرز، اس کے اوپر صرف فوکس ہے ان 4 ایگزامینیشن میں. اٹ از لیس ٹائم کنزیومنگ. آپ بہت آسانی سے جو ہے وہ اپنی اسٹڈیز کم ٹائم ڈیوریشن میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اور ہائی پروبیبلٹی آف پاسنگ ایگزامینیشن. وین وی آر سیئنگ اٹ از لیس ٹائم کنزیومنگ، اس میں بہت سے ہم نے اسٹوڈنٹس ایسے دیکھے ہیں جو 6 سے 8 مہینوں کے اندر اپنی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اینڈ دین دے گیٹ دس کوالیفیکیشن اینڈ دے کین گیٹ جابس. جیسا میں نے بتایا کہ فار ایسٹ میں، مڈل ایسٹ کے اندر اس کی بڑی اچھی ایکسیپٹیبلٹی ہے. دین سیم لیول آف ایکسپرٹیز آپ کو جو ہے وہ مل جاتی ہے. لوکل کوالیفیکیشن میں جو آپ کو اتنا ٹائم ڈیوریشن ریکوائرڈ ہوتا ہے، 5 سال کم از کم، جب چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے لیے آپ نے جانا ہے تو 5 سال ریکوائرڈ ہے، جو کہ آپ کو ادھر ایک میکسیمم آپ کہیں کہ 1 سال میں، 1.5 سال کے اندر آپ کو تمام ایکسپرٹیز مل جاتی ہیں جو کہ نیڈفل ہوتی ہیں. ایزی ٹو مینیج اسٹڈیز along with your work, along with your job, along with your business. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ اپنی اسٹڈیز اس کے ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں. یو کین ویری ایزیلی مینیج یور ٹائم. آپ کو کوئی اس کے لیے ریگولر 6-8 گھنٹے کی کوچنگ نہیں ریکوائرڈ ڈیلی بیسس پہ. آپ ویکینڈ بیسس پہ اس کی کوچنگ کو مینیج کر کے اپنے ریگولر ڈسپلن اسٹڈی آورس جو ہیں پلان کر کے، تو یو کین فنش یور دس USCPA پروگرام. پھر اس کا ایک انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے. اگر آپ پاکستان کی ایجوکیشن اور پاکستان ہی کے ریفرنس میں دیکھتے ہیں، دیٹس ویری فائن. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ایک انٹرنیشنل لیول پر منوانا چاہتے ہیں، سروسز آپ اس لیول پہ دینا چاہتے ہیں اور اس کا ایک ایکسپوئر لینا چاہتے ہیں، تو پھر ایک بہترین کوالیفیکیشن ہے USCPA.
बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि इसका एंट्री लेवल मैच्योर्ड स्टूडेंट्स के साथ है. बाकी हम देखते हैं जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर मौजूद हैं हमारे पास. आफ्टर बेसिक एजुकेशन ऑफ 12th ग्रेड आप उसके बाद उसमें एंटर हो जाते हैं FAFSC करके. लेकिन यहाँ पर आपको जो है प्रॉपरली 4 years का बैचलर्स डिग्री करना पड़ती है, मास्टर्स डिग्री करना पड़ती है ना. वो 150 क्रेडिट आवर्स के कोर्स आपको करना पड़ते हैं. उसकी डिटेल्स अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे मजीद. तो फिर उसके ऊपर जाके बेस करके हमारी जो है वो इसकी एंट्री मिलती है. तो मैच्योर होते हैं और 100% कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, इसमें कोई पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है. फिर इसकी ग्लोबल वैल्यू जो है वो है, हम जब बात करते हैं नॉलेज बेस की, तो उसमें हम देखते हैं कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ही फोकस नहीं कर रहे, बल्कि हम यूएस गैप के ऊपर भी एक अच्छी ग्रिप रखते हैं, यूएस CPA जो है. और उसकी फिर हमें जो है फायदा ये होता है कि हम CPA होल्डर जो हैं वो USA में प्रैक्टिस लाइसेंस ले सकते हैं. ये वाहिद क्वालिफिकेशन है through which you can enter into USA for practicing this accounting and auditing thing. So it is highest paid and top role designation जो है वो आपको मिलता है USA के अंदर. इसकी जैसे मैं पहले आपको बता चुका, मिडिल ईस्ट में और फार ईस्ट के अंदर बहुत डिमांड है. प्रेफर करते हैं कि इफ you are a US CPA, they prefer you for the job. इसकी ग्लोबल वैल्यू में बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है. So any company listed in US exchange or any subsidiaries over there or US based companies and organizations operating internationally, वो prefer करते हैं कि उनके पास US CPAs काम करें. Then बहुत important चीज ये है, if you are a US CPA qualified person sitting in Pakistan, you have an opportunity to get outsourced work. आपको इधर बैठे हुए आउटसोर्सिंग का काम मिलना शुरू हो जाता है. एक बहुत बड़ी, आपको नहीं चाहिए, पाकिस्तान से नहीं जाना चाहते, ओके दैट्स फाइन, कोई इमिग्रेशन वाला इशू नहीं है. While sitting in Pakistan, आजकल बाउंड्री लेस आपकी जो है वो इकोनॉमी है. आप ग्लोबली आउटसोर्स वर्क जो है पिक कर सकते हैं. यू कैन वर्क ऑन दैट. इट्स अ क्वालिफिकेशन पासपोर्ट फॉर पर्सन विशिंग टू माइग्रेट. सीधी सी बात है, एक दुनिया खुल जाती है इसके बाद कि आपके पास ठीक है लोकल क्वालिफिकेशन भी है, आपके पास इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन भी है, आप माइग्रेट कर सकते हैं. एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है कि अगले 10 से 15 साल के अंदर 75% of the members of AICPA they are going to get retired. तो इसका मतलब एक बड़ा गैप जो है वो क्रिएट होने जा रहा है. अगर आप क्वालिफाई करते हैं, आप उस गैप को फिल करते हैं और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है to enter into that like professional field जिसकी के एक बहुत बड़ी ज़रूरत होगी. आप then become CA under MRA with top international bodies. ये MRA क्या है, ये आपको हम एक्सप्लेन करते हैं कि जी आप म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट है एक 8 कंट्रीज के साथ, 8 इंस्टीट्यूट्स के साथ CPA का. आपने अगर ये क्वालिफाई किया हुआ है तो वो रिकॉग्नाइज करते हैं 8 कंट्रीज आपको. रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है. CPA रिकॉग्नाइज होता है इन इंस्टीट्यूट्स में और इन इंस्टीट्यूट्स की क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज होती है. आपको सिंपली एक IQE इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन पास करना होता है और आप यू बिकम मेंबर फॉर दैट. इसकी एक्सप्लेनेशन अभी फर्दर आपके साथ शेयर कर ली जाएगी. और ये एक बड़ा ब्रीफ सा इसका प्रोग्रेशन पाथ है जिसमें कि हम 4 पेपर्स आफ्टर हैविंग आवर बिजनेस ग्रेजुएशन विद अस 150 क्रेडिट आवर्स की, तो 4 पेपर्स और 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ यू बिकम US CPA. इसकी फर्दर डिटेल्स जो हैं ब्रीफली, सिंस वी आर हैविंग 11 पार्टिसिपेंट्स नाउ,
اور آپ کے question answer کے ذریعے سے, because we were in fact expecting کہ جی there would be there were 45 registrations, might be people are joining, like now there are 12 participants. So further details Maqbool Saab will share with you. Maqbool Saab is a very respectable name of CA fraternity. In fact, he has earned his name because of his countless contributions for the professional education, for the profession, for the accounting practice, even in the industry. He is an MCOM, and then his fellow member of Institute of Chartered Accountants of Pakistan. He is fellow member of the Institute of Chartered Accountants of England and Wales. He is fellow member of the ACCA UK. He is CPA US. He is Chartered Accountant Ontario, Canada, and he is CPFA UK SIPFA body. So this is, alhamdulillah, a legendary personality who would be addressing you for providing this orientation that what is CPA. Maqbool Saab is a senior partner in renowned chartered accountant firms in Pakistan and in UAE, in Canada, and in UK. So, mashallah, he has a wide exposure through which, like, he provides guidance that why these certain qualifications. In fact, he has comparison of all other qualifications which are available in accounting and auditing. So obviously the guidance that he will be providing to us carries a weight. And he had been vice president and council member of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan. He also had been the 2 times president of Pakistan Institute of Public Finance Accountants. Currently, he is member of Accounting Standard Board, and he is chief executive of the Way to US CPA and chief executive of the Executive Development Center of the University of Lahore. He's also an elected independent director and chairman of audit committee of BATA Pakistan since 2013. He is public finance accountant, SIPA, UK. Sir, I'll request you to hold the control of this webinar, and please provide us certain details about the USCPA. صاحب اپنی پریزنٹیشن ذرا اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Mir Saab, thank you very much for introducing USCPA and also giving my introduction. Basically, before I start my presentation, let me pick up few points from your discussion. ایک تو آپ نے کہا ہے کہ یہ سی پی اکاؤنٹنسی کی ٹاپ کوالیفکیشن ہے. میں اس کو تھوڑا کنورٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ اکاؤنٹنگ بزنس اور فائنانس کی ٹاپ کوالیفکیشن انٹرنیشنل ٹھیک ہے, اور صرف اکاؤنٹنگ نہیں ہے. دوسری بات میں یہ بھی بتا دوں دوستوں کو کہ اکاؤنٹنگ از اے ایور گرین فیلڈ. یہ جو لوگ جابس ہیں کہ مسٹ نو دیٹ کہ دی ڈیمانڈ آف اکاؤنٹنٹ از ویری مچ persistent, or with the up and down in economy it doesn't affect. Like abhi challenges aaye hoئے forward کے وہ کیونکہ نئے
اکاؤنٹنٹ بھی اوپن اپ ہو رہے ہیں فار دا سروائول آف دا بزنس. یہ اکاؤنٹنگ اکیلی نہیں ہے, یہ اکاؤنٹنگ فائنانس اور بزنس کی ٹاپ کوالیفکیشن میں آتی ہے. دوسری بات آپ نے یہ کہی تھی کہ آؤٹ سورس ورک میں ہیلپ کرتی ہے, تو اس کی ایگزامپل میں بتاتا ہوں کہ انڈیا جو ہے ہمارے ریجن سے زیادہ کر رہا ہے, دے آر گیٹنگ لاٹ آف ورک فرام نارتھ امریکا, جو ان کے اکاؤنٹنٹ اور بزنس کمیونٹی یا بزنس کنسلٹنٹ فائنانس کنسلٹنٹ جو ہے ود ان کنٹری بیٹھے دے آر ارننگ دی فارن ایکسچینج ریونیو فار اینڈ alone from the outsourcing and the IT, they are getting more revenue than Pakistan getting from all the products that وہ export کر رہا ہے Pakistan. اور کووڈ کے بعد people have seen کہ personal presence of consultant and accountant and business advisors, at the same time they also acknowledging that it's not required in the same country as well. So after that یہ جو سروسز ہیں you can provide internationally by sitting in your own drawing room or your home office. لیکن اس کے لیے آپ کے پاس رائٹ ایکسیپٹیبل کوالیفکیشن ہونی چاہیے. تو یہ جو کوالیفکیشن ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ مجھے 1995 میں ایک اپرچونٹی ملی تھی آؤٹ سورس ورک کی, اور دوسری 2002 میں ملی تھی. تو 2002 کو میں نے کافی سیریسلی لیا تھا. تو دس واز فرام کیلیفورنیا اکاؤنٹنگ فرم جو کہ پاکستان سے ورک آؤٹ سورس کر کے سروسز ارینج کرنے جا رہی. تو دیر کوشچن واز کہ میری ٹیم میں سی پی اے کتنے ہیں. آئی ٹولڈ دیم کہ ہمارے یہاں سی پی اے نہیں ہوتا, ہمارے یہاں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے, اینڈ وی ہیو مے بی 10 or 12 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ان آور فرم. کوشچن واز ہاؤ مینی سی پی اے. So I told him کہ بھائی سی پی اے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں خاص فرق نہیں ہوتا, they are both expert. So the question was کہ if you don't have a CPA your organization, so how you would assure کہ آپ کی ساری سروس جو ہیں وہ اس نالج کے ساتھ ہیں جو یو ایس کا نالج ہے, یو ایس گیپ کا نالج ہے, یو ایس کی فائلنگ ریکوائرمنٹس ہیں. تو میں نے کہا there is no problem, we can study and we couldn't get that job. انڈیا کے اندر hundreds, like thousands CPS various organizations they are working. That's why India is successful in showing that they have the right expertise there. تو اس لیے بہت سے انڈین, اور میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا جو اونلی ہمارے ریجن کی ایک ایسی نیشن ہے, کنٹری ہے جہاں کے ایکسپرٹ جو باہر کام کر رہے ہیں وہ واپس دے آر کمنگ بیک ٹو انڈیا, رائٹ, کیونکہ دے نو کہ by sitting in India they can organize more resources and provide them more services, کیونکہ ان کو نالج مارکیٹ کا ہو چکا ہے. They are just thinking that they can make more revenue by sitting in India because the talent is available in India, recognition is there. تو میں اس لیے یہ آپ کی اس بات کو انڈورس کر رہا ہوں کہ آؤٹ سورس ورک جو ہے اس کوالیفکیشن کا بہت زیادہ چانسز ہیں, لیکن کووڈ پوسٹ کووڈ جو ایرا ہے اس میں دیٹ ول گرو مور. اچھا, ایم آر کے ریلیٹڈ آپ نے جو بات کی ہے یہ بھی ہے کہ میرے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کچھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جہاں سے مائگریٹ کر رہا ہے, جہاں پہ کینیڈا جانا چاہ رہے ہیں, شاید ویزا وغیرہ آ گئے ہیں یا پروسیس ہے, تو ہی سیڈ کہ میں بفور آئی گو دیئر میں کینیڈا سی پی اے کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس کو بتایا کہ آپ کینیڈا سی پی اے پاکستان میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے, ون یو آر ان کینیڈا پھر آپ اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں, پھر وہیں ایگزام دے سکتے ہیں. تو ہی واز کوائٹ ڈپریسڈ کہ اس کے 1.5 سال ضائع ہو جائے گا. پرابلی واز تھنکنگ, انہوں نے کہا کہ وائی ناٹ یو ڈو سی پی اے, بس آئی ایم گوئنگ ٹو کینیڈا. میں کیا آئی ٹیل یو یہ میوچل ایگریمنٹ ہے سی پی اے کا اور کینیڈا کا. اس کے اندر جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کینیڈین سی پی اے بن جائیں گے, اور آپ کو کوئی ایگزام نہیں دینا, آپ کینیڈین سی پی اے بن جائیں گے if you want to do job. ہاں, اگر آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں وہاں پھر آپ کو ایک ایگزام دینا پڑے گا. اس کے بعد وہ ملٹیپل چوائس ایگزام ہوتا ہے وہاں پہ لا اور ٹیکس کو سمجھنے کے لیے, وہ آپ ایزیلی پریپیئر کر کے اس کو اسپیشل ایگزام ہوتا ہے جو ریسیپروسٹی ایگزام ہوتا ہے. تو ہی واز ویری ہیپی.
تو یہ MRS کا یہ ہے. تو آپ دیکھیں MRS صرف ٹاپ کنٹریز کے ساتھ ہیں. ان کے 8 کنٹری جو آپ نے کیے ہیں اس میں یو کانٹ سی انڈیا, یو کانٹ سی پاکستان, اینڈ یو ایون کانٹ سی انسٹیٹیوٹ چارٹر کون انگلینڈ میں. تو وہ جتنے بھی ان کے ہیں بڑے ٹاپ کنٹریز ہیں. آئرلینڈ ہے, آسٹریلیا ہے, ہانگ کانگ ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, اسکاٹ لینڈ ہے. تو دے میکسیکو, دے ہیو 8, کینیڈا بھی آ گیا اس میں, نیوزی لینڈ بھی ہے. تو دے ہیو ٹاپ کنٹریز کو ایکسیپٹ کریں. جیسے پاکستان انسٹیٹیوٹ چارٹر اکانومکس کر رہا ہے تو MRA میں جائے تو ان کو CPA کو یہاں پہ الاؤ کرنا پڑے گا, وہی رائٹ جو چارٹر اکاؤنٹنٹس ہیں, تو پھر ان کو وہ MRA مل جائے گا. تو کئی ہمارے دوست جو سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں رہنا ہے تو کیا CPA جو ویلیوبل ہے, تو میں کہتا ہوں یس, ان دا ٹائم کم یہ بہت ویلیوبل اس لیے ہو جائے گا کہ یہ کنٹری MRA میں جب جائیں گے تو سیم ڈیزگنیشن ریکگنیشن ہو جائے گی. With this saying it's a very useful qualification. Now question arises then how. تو اس سے میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ 3 پلر ہیں اس کے to get qualification US CPA. One is education. وہ ایجوکیشن جو آپ نے انٹری سے پہلے آپ کے پاس ہونی چاہیے. ایجوکیشن میں مراد یہ ہے. ایگزام, کتنے ایگزام آپ کریں گے US CPA ہو جائیں گے. مائک کو کنیکٹ سراج صاحب آپ ایک ذرا میوٹ کر لیجئے. جاوید سراج. جی سر پلیز پروسیڈ. جی ایگزامینیشن 4 ہے, میں بھی بتاؤں گا کون سے ایگزامینیشن ہے. پھر ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے, آپ کو پتہ ہے پروفیشنل کوالیفکیشن آپ نے لینی ہو تو آپ کو ایگزام کے ساتھ کچھ ایکسپیرینس چاہیے. جیسے پاکستان میں منیمم تو 3.5 سال کا ایکسپیرینس چاہیے آپ کو چارٹر اکاؤنٹنٹ فرم میں یا کسی اپرووڈ بزنس ہاؤس کے اندر, کم چارٹر اکاؤنٹنٹ. اس طرح انگلینڈ میں بھی 3 سال کا ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہوتا ہے, لیکن یہاں بھی ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے. تو اب میں ان تینوں کی بات کرتا ہوں. ایجوکیشن جو ہے یہ یہاں پہ 55 اسٹیٹس اور ٹیریٹریز ہیں جن کا CPA ہوتا ہے. ہر اسٹیٹ کا اپنی CPA ریکگنیشن ہے, رائٹ. یو کانٹ سے کہ اس کو US CPA اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے جو فائنل ایگزام ہے 4 وہ کنٹری وائز ہیں, یونیفارم ایگزام کو کہتے ہیں, اس لیے بھی US CPA بن جاتا ہے. ادروائز آپ کو انڈیویجول اسٹیٹ کے ساتھ رجسٹر ہونا پڑتا ہے ٹو ٹیک ایگزام اینڈ ٹو بیکم دا ممبر اینڈ بیکم اے CPA. یو ہیو ٹو اٹیچ یور سیلف ٹو دا اسٹیٹ. تو اب اس میں جہاں تک ایجوکیشن کا تعلق ہے, ایجوکیشن 150 کریڈٹ آورس چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں جو گریجویشن ہے وہ نیئرلی 130 کریڈٹ آورس کی ہے. تو گریجویشن از ناٹ انف 4 ایئر. اس طرح 2+2 پہلے ہمارے پاس ہوتا تھا, کسی نے 2 ایئر کی گریجویشن کی ہے, BBA کیا اور 2 ایئر کا MBA کر لیا, 4 ایئر ہو گئے, جو 16 ایجوکیشن کہلاتی ہے. تو 16 ایجوکیشن منیمم ہے, لیکن 16 ایجوکیشن ساتھ آپ ایگزام دے سکتے ہیں, بہت اسٹیٹس کے ایگزام دے سکتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جب آپ نے CPA کا سرٹیفکیٹ لینا ہے تو آپ کی اس وقت ایجوکیشن جو ہے 150 کریڈٹ آورس کی ہونی چاہیے. میک اپ آپ کو کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. ایگزام 4 ہے, میں نے کہا ہے 2.5 آورس ہونے چاہیے. اور کچھ کہتی ہیں کہ آپ 120 کے ساتھ ایگزام دے سکتے ہیں. بیلنس آپ میک اپ کر لیجیے گا when you want to get the certificate. اچھا, اس طرح ایکسپیرینس کی ریکوائرمنٹ بھی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ویری کرتی ہے. زیادہ اسٹیٹ 1 ایئر کا ایکسپیرینس ریکوائر کرتی ہے, لیکن کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں جو 2 ایئر کا ایکسپیرینس ریکوائر کرتی ہیں. تو ہم ایڈوائز کرتے ہیں وہ اسٹیٹس جو کہ 1 ایئر کا ایکسپیرینس ریکوائر کرتی ہوں. اچھا, پھر ایکسپیرینس کی بھی ورائٹی ہے. کچھ اسٹیٹس کہتی ہیں وہ آپ کا پبلک اکاؤنٹنگ پریکٹس کے اندر ایکسپیرینس ہونا چاہیے, اور کچھ اسٹیٹس کہتی ہیں کہ آپ کا گورنمنٹ سیکٹر کا ایکسپیرینس, آپ کا یونیورسٹی ٹیچنگ کا ایکسپیرینس بھی ایکسیپٹیبل ہے. کسی بزنس میں آپ نے جاب کی ہو, وہاں آپ کا اکاؤنٹنگ یا فائنانس رول رہا ہو, تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. تو ایکسپیرینس بھی ویری کرتا ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ. جس میں ہم جو بھی اس میں چرچ ہوتا ہے ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کس اسٹیٹ کے لیے وہ جائے اور کس وہ ایک اور ہے کہ یہ فورن ایجوکیشن جو ہے یہ ساری کی ساری ایویلویشن کی جاتی ہے. اس کو جیسے آپ نے IBA سے لاہور سے ایجوکیشن کر لی ہے یا کسی نے ہیلی کالج سے کر لی ہے,
तो अमेरिकन स्टेट डो नॉट नो दिस इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन, तो जो उन्होंने वैल्यूएशन कंपनीज हैं वहाँ पे, वो वैल्यूएशन कंपनी को हम अपने डॉक्यूमेंट देते हैं, वो हमें कह देते हैं कि यस यू आर इक्वल टू यूएस एजुकेशन, और आपके 135 क्रेडिट आवर हैं या आपके 180 क्रेडिट आवर्स हैं, आप इक्वल टू मास्टर डिग्री हैं या इक्वल टू बैचलर डिग्री हैं, तो ये वैल्यूएशन हो जाती है। तो हम ही बताते हैं कि किस वैल्यूएशन एजेंसी के साथ वैल्यूएशन करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा इसमें ये है, बता दूं इसमें कि आपका एग्जाम जो है वो बेसिकली कंप्यूटराइज होगा, प्रोमेट्रिक लिखा है मैंने, तो कंप्यूटराइज एग्जाम होता है आपका। और एग्जाम जो है ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है, ये डिज़ाइन करता है, और ये कंप्यूटर सेंटर जो प्रोमेट्रिक है इनको दे देते हैं, और यही उसकी एडमिन करते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन करते हैं एग्जाम डेट की, और आप एग्जाम देते हैं। फिर आपका वो रिजल्ट अनाउंस नहीं होता, रिजल्ट वो अमेरिकन जो इंस्टीट्यूट है सीपीए का उसको भेज देते हैं, और कुछ दिनों के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। तो बेसिकली आपके एज ए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किसी स्टेट बोर्ड के साथ होती है, और उन्होंने आपका सारा जो है मॉनिटर कर रहे होते हैं। नासबा जो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ जो है वहाँ पे स्टेट बोर्ड ऑफ अकाउंटेंसी जो है, एंड दैट इज बेसिकली ये सारे कैंडिडेट का डाटा ये मेंटेन करते हैं, और नासबा और मैट्रिक मिलके एग्जाम के लिए आपको लेके चलते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आपको जैसे जो भी इंटरेस्ट होता है हम उससे शेयर करते हैं उसको इस टाइम पे साथ आप जानते हैं वन अदरवाइज 150 क्रेडिट आवर चाहिए होते हैं, तो कुछ अकाउंटिंग क्रेडिट आवर चाहिए होते हैं, और कुछ बिजनेस क्रेडिट आवर चाहिए होते हैं, लेकिन मिनिमम 12 to 15 चाहिए होते हैं अकाउंटिंग क्रेडिट आवर मिनिमम, लेकिन नॉर्मल 24 अकाउंटिंग क्रेडिट आवर चाहिए होते हैं। तो अकाउंटिंग क्रेडिट आवर से मुराद है कि आपकी प्रिंसिपल अकाउंटिंग है, आपकी इंटरमीडिएट अकाउंटिंग है, आपकी एडवांस अकाउंटिंग है, आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, टैक्सेशन है, ऑडिट है, ये सारे अकाउंटिंग फैमिली है। तो इसके अंदर से आपको मिनिमम 12 और आइडियली 24 क्रेडिट आवर आपके पास होने चाहिए। दे हैव टू स्टेट which accept with the 12 to 15 credit hour है, जैसे न्यू हैम्पशायर 12 के साथ एक्सेप्ट कर लेती है, जो अलास्का है 15 के साथ भी एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये हम सारी एडवाइज करते हैं इस सिलसिले में। अच्छा होता ये है कि जब वैल्यूएशन जो है ये तकरीबन मैं बता दूं आपको कि ये 5 से 8 हफ्ते लग जाते हैं वैल्यूएशन कराने में। जब आपकी एप्लीकेशन फाइल होती है अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल होती है, फिर आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो कौन से जाने चाहिए, उसमें ग्रेजुएशन होती है, मास्टर डिग्री होती है, या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास हो, तो वो उनकी ट्रांसक्रिप्ट और उनकी डिग्री की कॉपी जो वेरीफाइड बाय दी यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो ऑनलाइन भी भेजी जा सकती हैं थ्रू ईमेल, और ये फिजिकली थ्रू कोरियर भी भेजी जा सकती है। तो ये कोई $250 के करीब डॉलर की फीस लगती है, जिसमें वो आपको डिटरमिन कर देते हैं, आपको इक्विवेलेंस टू द अमेरिकन एजुकेशन और नंबर ऑफ क्रेडिट डिटरमिन कर देते हैं। उसके बाद आप स्टेट बोर्ड में अपने आप को रजिस्टर करते हैं एज ए कैंडिडेट। यहाँ भी कोई $100 की फीस आपको कॉस्ट आती है। जब आप इसमें रजिस्टर हो जाते हैं तो नॉर्मली 2-3 वीक का प्रोसेस ये होता है आपका इवैल्यूएशन। तो इसमें जब आप रजिस्टर हो जाते हैं तो फिर आपको वो कहते हैं कि अब आप नासपास में अपनी एग्जामिनेशन फीस जमा करा दें, और वो आपको एक नंबर दे देगा जिससे आप प्रोमेट्रिक में अपना एग्जाम शुरू कर सकते हैं। तो ये भी 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। जब आप फीस जमा करा देते हैं तो आपको 6 महीने के अंदर अपना एग्जाम शेड्यूल करना होता है। तो अगर आप एग्जाम शेड्यूल करते हैं फिर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ 2 डेज रह जाए तो फिर आपको $35 पर पेपर जो है रीशेड्यूलिंग फीस देनी पड़ती है, अदरवाइज डेट कर दें तो आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती। इस तरह आपका एग्जाम होता है, आप एग्जाम पास कर लेते हैं। 4 एग्जाम है जैसे मैंने साथ बताया। तो फिर अगर आपका एक्सपीरियंस शॉर्ट है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है अभी, तो एक्सपीरियंस आप का पहले वाला भी काउंट हो जाता है, सीपीए शुरू करने से पहले वाला।
अगर सीपीए के दौरान आपका एक्सपीरियंस आ गया वो भी काउंट हो जाए। सीपीए करने के बाद विद इन 3 to 4 ईयर आपके पास टाइम होता है 3 ईयर फिर शायद जगह मैं कहूँ, तो उसके अंदर आपने एक्सपीरियंस अपना ऐड करना होता है। अगर आपका क्रेडिट आवर मिसिंग है, जैसे मैंने कहा 50 टाइम मिसिंग है, तो आप उसको भी ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका ये तो प्रोसेस बन जाएगा। तो इसमें एग्जाम जो है, अच्छा ये देखिए अभी आपने सुना कि हम मुझे क्यों कह रहे हैं कि ये सीपीए किया जाए आप लोगों को या ग्रेजुएट्स को, बिजनेस ग्रेजुएट्स को, इसलिए कि ये पहले एग्जाम देने के लिए यूएस जाना पड़ता है। अब अप्रैल 2020 से अब पाकिस्तानी जो रेजिडेंट्स हैं या नेशनल्स हैं वो यूएई में भी जाके, मिडिल ईस्ट में भी जाके एग्जाम दे सकते हैं। मिडिल ईस्ट में 4 कंट्री हैं, बहरीन है, लबनान है, कुवैत है और यूएई है। फिर आप वहाँ पे विजिट वीजा पे जाके एग्जाम दे सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी ओपन हुई है पाकिस्तान के लिए फर्स्ट टाइम। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं they have this very golden opportunity to gain this international qualification. तो ये मुख्तलिफ इंटरनेशनल टेस्टिंग सेंटर हैं जहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको वहाँ का वीज़ा चाहिए। जैसे यूएस का वीज़ा चाहिए, रेजिडेंसी नहीं चाहिए, सिटीजनशिप नहीं चाहिए। लेकिन किसी और कंट्री में आप जाकर एग्जाम देना चाहें ना, तो वो आप नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने पॉइंट किया हुआ है कि यार जापान में कौन एग्जाम दे सकता है, ब्राजील में कौन दे सकता है, इंडिया में कौन दे सकता है। इंडिया में 8 एग्जाम दे सकते हैं और 8 नेशन वहाँ जाके एग्जाम दे सकते हैं। पाकिस्तान इज नॉट इंक्लूडेड अमंग दैट। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, म्यांमार और इंडिया खुद, और 8वां जो है यूएस के अगर लोग वहाँ हैं तो भी दे सकते हैं। तो ये इनके एग्जाम सेंटर हैं। यूरोप में कोई भी दे सकता है, विजिट वीजे पे जाके दे सकता है। नो नीड कि आप वहाँ पे नेशनल हो या रेजिडेंट हो। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आई है पाकिस्तानी के लिए, वो मिडिल ईस्ट है। यू नो मिडिल ईस्ट का वीजा हमारे लिए समझता नहीं होता, वीजा इन डेज अरेंज हो जाता है, बार बार अरेंज हो जाता है लो कॉस्ट पे ट्रैवल हो जाता है, लो कॉस्ट पे वीजा आपको मिल जाता है एज कम्पेयर टू अगर आपने यूरोप जाना है, वीजा डिफिकल्टी है, अमेरिका जाना है, वो दो सेंटर अवेलेबल हैं, यूएस, यूरोप एंड यूरोप में 4 कंट्री हैं, इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड, आयरलैंड, एक स्कॉटलैंड एक ही कंट्री है। 2 सेंटर जो हैं यूके में है, आयरलैंड में और जर्मनी में। तो ये इंटरनेशनल टेस्टिंग सिर्फ इन स्टेट्स में जो एग्जाम देना चाहते हैं या इन स्टेट्स के जो मेंबर बनना चाहते हैं वो इंटरनेशनल टेस्टिंग नहीं होती, इसके लिए लोकल अमेरिका में टेस्टिंग होती है। तो एक और बात होता है कोई अमेरिका में जाके एग्जाम देना चाहता है, अलास्का के लिए वो क्वालिफाई करता है, लेकिन उसको अलास्का नहीं जाता, वो इवन न्यूयॉर्क में जाके एग्जाम दे सकता है। जैसे मैंने बताया एग्जाम जो है यूनिफॉर्म सेम पेपर होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एग्जाम की कोई डेट शीट नहीं होती, ये कंप्यूटराइज एग्जाम है, ये हर वक्त होते हैं, हर क्वार्टर में लास्ट 20 डेज नहीं होते। जैसे मार्च का क्वार्टर है, जनवरी मार्च का, तो 11 मार्च से 31 मार्च तक एग्जाम नहीं होगा, बाकी 2 मंथ एंड 10 डेज एग्जाम होता है। अपनी मर्जी की डेट आप चूज करें, और ये भी कर सकते हैं एक एग्जाम दूसरे एग्जाम के अंदर गैप रख सकते हैं अपनी मर्जी का, ताकि आप प्रिपरेशन कर लें। और ये सारे के सारे एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, ये भी मैं बता दूं। ऑब्जेक्टिव टाइप एक मल्टीपल चॉइस होता है और फॉर्म भी होती है, लेकिन ये कोई लार्ज क्वेश्चन नहीं है टेस्ट। ओके, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिमुलेशन वगैरह टेस्ट होते हैं। अब इसके 4 पेपर हैं, जैसे मियां साहब ने कहा, वो 4 पेपर हैं। एक ऑडिट एंड अटेस्टेशन, ऑडिट का पेपर है, एक बिजनेस का पेपर है जिसको बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉन्सेप्ट कहते हैं, और एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का पेपर है, और एक रेगुलेशन का पेपर है। अच्छा, 2 पेपर के नाम से क्लियर है कि उसमें क्या होगा, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है या ऑडिट है, लेकिन बिजनेस में क्या है ये मैं बताता हूँ, और रेगुलेशन में क्या है ये मैं बताता हूँ, इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो ये जो बिजनेस है इसमें 5 सब्जेक्ट, एक चैप्टर बेसिक आईटी का है, यानी एप्लीकेशन जो होती है बिजनेस, जैसे आपको पता है पावर पॉइंट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का बिजनेस चाहिए, नॉलेज चाहिए आप, जो आईटी सिस्टम है, बेसिकली आईटी सिस्टम का ज्यादा पेपर होते हैं। ऐसा मेरी आवाज आ रही है?
جی جی آ رہی ہے. اچھا سوری تھینک یو. تو مجھے شو کر رہا تھا ویک انٹرنیٹ تو میں اس لیے پوچھا. تو دوسرا اس میں اکنامکس کا چیپٹر ہوتا ہے, بیسک مائکرو میکرو اکنامکس کے بارے میں بات ہوتی ہے, زیادہ میکرو ہے. اور تیسرا اس کا ہوتا ہے کارپوریٹ گورننس کے اوپر ایک سبجیکٹ پیپر ہے, اور ایک اس کا فائنینشیل مینجمنٹ کے اوپر ہے, تو دو چیپٹر ہیں, اور ایک چیپٹر اس کا پرفارمنس مینجمنٹ یا مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے اوپر. اس طرح یہ 6 پیپر چیپٹر ہیں, اس کے بعد کمپوننٹ ہیں. اور جو ریگولیشن ہے اس کے 3 کمپوننٹ ہے, ایک یو ایس فیڈرل ٹیکس ہے, ایک یو ایس بزنس لا ہے, اور ایک یو ایس بزنس پریکٹس وہ ایتھکس ہے, بزنس اینڈ پریکٹس یعنی اکاؤنٹنٹ کی چارج. یہ اس طرح یہ 4 پیپر ہے. اب ان پیپر کا جو میک اپ ہے وہ اس طرح ہے کہ اس میں یہ میں میک اپ پہلے آگے دکھا دوں آپ کو. اس میں 50% جو ہے نا ملٹیپل چوائس کوشچن ہوتے ہیں آج پیپر, اور 50% جو ہے وہ ٹاسک بیسڈ سیمولیشن ہوتی ہے. صرف ایک پیپر ہے بزنس کا جس میں 35% ٹاسک بیسڈ سیمولیشن اور 15% کمیونیکیشن ہے. اس طرح 100% ہو جائے. اب میں 2 چیزیں بتاؤں ٹاسک بیسڈ سیمولیشن کیا ہوتی ہے. ٹاسک بیسڈ سیمولیشن میں آپ کو ایک سینیریو دیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر ملٹیپل چوائس نہیں کوشچن پوچھے جاتے, اس کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کو ورکنگ کر دیں, جنرل انٹری پاس کر دیں, رائٹ. تو آپ کو اسی کمپیوٹر پہ ہی ریلیونٹ جنرل انٹری کے جو نریشن ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے, وہ اویلیبل ہوتی ہیں. 10-12 ہیں, ان میں سے آپ نے ریلیونٹ کو سلیکٹ کرنا ہے, ڈیبٹ کو, ریلیونٹ کو, کریڈٹ کو. جب بھی 2 ڈیبٹ آتے ہیں 3 کریڈٹ بنتے ہیں, ان کو سلیکٹ کر کے فگرز کیلکولیٹ کر کے تو سسٹم کے اندر ہی کیلکولیٹر ہوتا ہے, اس کے اندر فل کر کے تو آپ نے وہ ٹاسک مکمل ہو جاتا ہے. اس طرح سیمولیشن ہوتی ہے. اور ایک ریٹن کمیونیکیشن ہے جو کہ بزنس میں ہے. جیسے آپ کو کوشچن آ جائے کہ آپ نے بورڈ آف ڈائریکٹر کو ایک لیٹر لکھیں کہ کارپوریٹ گورننس کے اندر اپڈیٹ آ گئی ہے اور میجر اپڈیٹ کیا ہے, تاکہ وہ اپنے ممبرس کے اندر شیئر کریں. ایسا ایک کمیونیکیشن. یا آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کا کلائنٹ میں یہ ایشو آ گیا ہے اور کلائنٹ کو آپ ایڈوائز کریں. دو کوشچن ہوتے ہیں اس کے, جس سے وہ آپ کی بیسک تھاٹ کو بھی دیکھتے ہیں, بیسک ابلٹی آف لٹل انگلش کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے آپ یہ پیپرز کرتے ہیں. اچھا, اس کا جو اسٹرکچر ہے نا وہ اس طرح ہے کہ آپ کو 5 ٹیسٹ ملتی ہیں. فرسٹ ٹیسٹ ہوتی ہے, اس میں 36 ملٹیپل چوائس کوشچن ہے. میں آڈٹ والے سے دیکھ رہا ہوں, تو 36 ملٹیپل کوشچن آپ کریں گے, اس بک کو سبمٹ کریں گے تو آپ کو دوسری بک ملے گی. اور 4 گھنٹے میں آپ ایک بک بھی سبمٹ نہیں کریں گے, دوسری بک آپ کو نہیں ملے گی. اور آپ 10 منٹ میں یہ بک سبمٹ کر دیں گے, آپ کو دوسری بک مل جائے گی. یہ بک ٹرن بائی ٹرن آتی ہیں اسی طرح, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ پہ ٹاسک بیسڈ ہے, ففتھ ٹاسک بیسڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو امریکن ایگزام ہے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ بیسڈ ہے. آپ جب پہلی بک کر کے سبمٹ کرتے ہیں تو سسٹم آپ کے اسٹرینتھ اور ویکنیس کو اسیس کر کے آپ کو سیکنڈ ٹیسٹ بک دیتا ہے. جب سیکنڈ سبمٹ کرتے ہیں تو کیومولیٹو آف فرسٹ وہ آپ کو ٹاسک دیتا ہے. اس طرح یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ ہے. آپ کو انیسری نہیں کھپاتا. اگر آپ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ کا پاس براڈ ٹیسٹنگ کرے گا اگلی بک ٹیسٹ میں, آپ کو بہت ڈیٹیل میں نہیں لے جائے گا. لیکن اگر ویک کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ کو موقع دے گا کہ آپ اپنے آپ کو پروو کریں کہ آپ کو وہاں پہ ایکسیڈنٹلی یا فار سم ریزن یو کوڈ ناٹ پرفارم ان فرسٹ بک, سیکنڈ بک میں آپ کو موقع مل جائے گا کہ ویک ایریا کے دوبارہ کوشچن آ جائیں گے, تاکہ آپ اگر اس میں اسٹرانگ پروو کرتے ہیں تو پھر آپ کو پاس کی طرف لے جائے گا. اچھا, اس میں پاس ریٹ بڑے اچھے ہیں کہ 2018 اور 19 کے میں ریٹ آپ کو سبجیکٹ وائز آپ سے کر رہا ہوں کلیئر. یہ میں نے تو کسی اکاؤنٹنسی باڈی میں یہ ریٹ نہیں دیکھے, رائٹ. جیسے پاکستان میں تقریباً سبجیکٹ ویری کرتا ہے, لیکن اوور آل 10% کا ریٹ آج کل چلتا ہے, جو 10-11% کے حساب سے. فلائٹ موو بھی کرتا ہے, کئی دفعہ ڈاؤن بھی چلا جاتا ہے, لیکن یہاں ڈاؤن نہیں جاتے. یہاں وہ بڑے سسٹمیٹکلی ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے رزلٹ کو ریویو کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں آڈٹ کے اندر 51% رزلٹ 2018 سلائٹلی ہائر دین 59 جو ہے بزنس میں ہے, 46% فائنینشیل اکاؤنٹنگ رپورٹنگ میں ہے, ریگولیشن میں 53% ہے. اب آپ لاسٹ والے پہ 19 پہ چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ آلموسٹ رزلٹ اس کے قریب ہی ہیں, کہیں امپروو بھی ہوئے ہیں. جیسے ریگولیشن کا 53 سے 56 پہ چلا گیا,
और बाकी रिजल्ट ऑलमोस्ट उसी लाइन में है जिस लाइन में थे पहले आप, ठीक है। गुड रिजल्ट, तो पास करने के चांसेस बहुत हाई हैं। दो वजह है, एक तो जब वो आपको एज स्टूडेंट लेते हैं तो पहले मेक श्योर करते हैं कि आप बिजनेस स्टडी के स्टूडेंट पहले ही, सर्टन अकाउंटिंग आवर्स, बिजनेस आवर्स आपने अपनी स्टडी में लेट मी चेक, शायद मकबूल साहब के एंड पर कोई प्रॉब्लम है। रिजल्ट की तो वजह दो, एक स्टूडेंट जो है उनकी बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होती है, दूसरा स्टडी सिस्टम बड़ा स्ट्रांगली उनको सपोर्ट कर रहा होता है। अच्छा, इसमें ऐसा है जैसे आपने अप्लाई किया, आपने अकाउंटिंग स्टेट बोर्ड को कि आप उसके कैंडिडेट बनना चाहते हैं, उन्होंने आपको कहा ठीक है, जून के अंदर उन्होंने आपको ओके कर दिया, जुलाई की बिगिनिंग में फर्स्ट वीक में रखते, और आपने फिर वो नासबा से नोटिस टू शेड्यूल एग्जाम कर दिया ताकि आप अपने एग्जाम दे सकें। और जो रेड एरो है यहाँ पे आपने, जो कि मिडल ऑफ अगस्त है, आपने अपना पहला एग्जाम पास कर दिया। एग्जाम चारों एकदम नहीं देने होते, आप एक भी दे सकते हैं, दो भी दे सकते हैं, चारों इकट्ठे भी दे सकते हैं, इस आपको ये। अब आपने अगस्त के मिड में एग्जाम पास कर दिया, अब 3 एग्जाम रहते हैं, तो इस मिड ऑफ अगस्त से 18 मंथ के अंदर आपने रिमेनिंग 3 एग्जाम पास करने हैं, वरना आपका रेड जो स्टेज के एग्जाम पास हुआ है वो लैप्स हो जाएगा, आपको दोबारा देना पड़ेगा। 18 मंथ आपके पास होते हैं जिससे आपने रिमेनिंग 3 एग्जाम पास करना, बहुत ज्यादा टाइम होता है 18 मंथ। मेरे कोई 100 स्टूडेंट ने जो सीखे किया है, उनमें किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं आया, वो 18 मंथ का डेडलाइन आ गया और उनका एग्जाम पहले वाला लैप्स हो गया। 75% मार्क्स चाहिए आपको कोई एग्जाम पास करने के लिए, इसका मैंने ये रिजल्ट आपको दिखाया है, सब लोगों ने 75% स्कोर किया है। बेकर जो है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन प्रोवाइडर, जो भी और भी लोग एजुकेशन प्रोवाइड सपोर्ट करते हैं, लेकिन बेकर का रेट उनसे डबल होता है पास का। और जो टॉप अवार्ड हैं ये 90% बेकर के स्टूडेंट्स विन करते हैं। और बेकर ने अबाउट मिलियन कैंडिडेट को पिछले 50 ईयर्स में टीच किया है, इन एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है। और मोर देन 2000 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं यूएस एंड इंटरनेशनली बेकर को अपने एम्प्लॉयज और स्टाफ के लिए प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, जिनमें 4 बिग अकाउंटिंग फर्म के अलावा 100 अकाउंटिंग टॉप फर्म जो इसमें आती हैं। सिस्टम जो है इसमें बहुत कुछ है, लेक्चर्स हैं आपको मिल जाते हैं, फिर हमारे जैसे टीचर्स आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, रिमोटली प्रोवाइड हो जाती है जूम के जरिए। आपने अपने वीकली या फोर्टनाइटली सेशन करना होता है, जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो हमें आप पूछ लेते हैं, वरना लेक्चर को भी आप रिपीट करके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आई तो हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसमें मॉक आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है, और इसमें आपको प्रोग्रेस टेस्ट करते हैं। 3 मॉक एग्जाम होते हैं, एक्चुअल एग्जाम जाने से पहले हर सब्जेक्ट के 3 मॉक एग्जाम आप देते हैं ताकि आपको वेल प्रिपेयर कर दिया जाए। बुक्स जो हैं वो सॉफ्ट वर्जन में भी अवेलेबल होती हैं, प्रिंटेड हार्ड कॉपी में भी आपको मिलती हैं। इस तरह इसके फ्लैश कार्ड होते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपके पास एक्सेस होती है उसकी, ठीक है। तो बेसिक चीज जो मैं कह रहा हूँ, अपडेटेड कंटेंट होते हैं, एग्जाम फोकस होते हैं, और फिर इसमें बिल्कुल एग्जाम का जो उसको रेप्लिकेट कर रहा होता है, एग्जाम के जो कंटेंट्स हैं उसकी आउटलुक को बिल्कुल टोटली रेप्लिकेट हो रहा होता है। स्टूडेंट के लिए बहुत फेमिलियरिटी होती है जब वो एग्जाम देते हैं। तो ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स है अक्टूबर 2020 में, क्या सब्जेक्ट के कितने लेक्चर्स हैं, कितने उनके अपना ई कार्ड्स हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, कितने उनके जो है वो स्किल प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट्स हैं, ये सारा वो डाटा है जो कि उससे जो सिस्टम मिलता है उससे रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स है सारी। ओके, बेसिक 2 चीजें मैं बात करना चाह रहा हूँ क्लोज करने से पहले। एक तो ये है कि यहाँ 2 फीचर्स हैं, बहुत अच्छे फीचर इस सिस्टम में है जो दूसरे एजुकेशन प्रोवाइडर के पास नहीं। एक प्री असेसमेंट का टूल है,
एक पर्सनलाइज रिव्यू सेशन है। लेट मी से प्री असेसमेंट क्या है? प्री असेसमेंट है कि आपने एक चैप्टर शुरू करना है। लेट्स से आपने F8 शुरू करना है, F8 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 8 वो आपने करना है। उसके अंदर कोई 6 मॉड्यूल्स हैं, यानी उसके सेक्शन है 6। हर सेक्शन से पहले आपको कहा जाएगा कि आपने प्री असेसमेंट करनी है, तो आप अगर करते हैं तो आपको 7-8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन क्वेश्चन को अगर आप कर लें तो वो आपका रिजल्ट मिल जाएगा कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर आपको गाइड कर देगा कि आप अपना स्टार्ट कहाँ से करें। लेक्चर सुने फिर आगे चलें, या लेक्चर को आप स्किप करके सीधा आप प्रैक्टिस में जा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सिमुलेशन में जा सकते हैं। तो जहाँ जिन सेक्शन में आपको टाइम बच सकता है बचाएगा, और जहाँ आप वो समझिएगा कि आपने जैसे इस केस में 8 क्वेश्चन में से 6 सक्सेसफुल हैं, 2 गलत हैं, तो 75% रिजल्ट है। तो वहाँ 80% रिजल्ट वो चाहता है, तो 75% रिजल्ट तो पास का है, तो इसलिए वो 80 चाहता है। तो अगर आप 80 से ऊपर हैं तो आपको हो सकता है लेक्चर का टाइम सेव करें, आगे चलें। तो हर जगह आपको, हर चैप्टर के हर सेक्शन में आपको ये सपोर्ट प्रोवाइड हो जाएगी। उसके बाद जब आपने एक मॉड्यूल करते हैं तो यानी आपने F5 कर दिया, F5 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग का चैप्टर नंबर 5 कर दिया, और मे बी वो अर्निंग पर शेयर पे है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे है। तो उसके बाद आपको टेस्ट कहेगा कि आप वो जब आपने कर लिया तो आप उसने सर्च कर लिया आपकी स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, जब आप काम कर रहे थे, क्योंकि ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड काम हो रहा है, आपको नोट कर रहा है। और जब आपने वो सेशन किया तो उसने अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन दिए हैं, आपको सर्च करने के बाद आपको क्वेश्चन दिए हैं, आपने उसको अगर कर लिए तो ठीक है, वरना वो आप दोबारा फिर अपनी प्रिपरेशन करें। बताएगा किन एरिया की प्रिपरेशन चाहिए आपको, पूरा चैप्टर नहीं कहेगा करें, बताएगा फलां सेक्शन फलां एरिया जो है वो आपका लो है, तो आप उसमें जाके उसको करते हैं। जैसे ये इसने आपको जो बताया कि कहाँ आप इम्प्रूव हुआ है, कहाँ इम्प्रूव नहीं हुआ, तो उस बेस पे आप जाकर उसको करके तो दोबारा अपने आप को रीसर्च जब करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आप इस तरह आपको साथ साथ जो है अपनी असेसमेंट होती रहेगी। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी या खाना लैब टेक्नोलॉजी को यूज करके इन्होंने काम किया है। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से अबाउट कि फिर आप कैसे इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको फॉरेन एजुकेशन की वैल्यूएशन करानी पड़ेगी, एग्जाम बोर्ड के साथ, स्टेट बोर्ड के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा, अपना एग्जाम शेड्यूल करना पड़ेगा नासबा के साथ। तो फिर उसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस है वो ऐड करना पड़ेगा। ये सारे प्रोसेस में हम एडवाइज करते हैं, स्टूडेंट को 1-to-1 एडवाइज कर देते हैं। हमारा स्टाफ है वो भी इसके अंदर रहता है इंफॉर्मेशन। जैसे मैं इससे पहले के क्वेश्चन आंसर की तरफ जाऊँ, ये हमारा लाहौर ऑफिस का डेस्क है। ये लड़की जो है ये पूरी इसमें सपोर्ट करेगी आपको। जहाँ भी कोई क्वेश्चन ऐसा है जो उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग से अबव हो तो फिर वो मुझे यमुना साहब से इन्वॉल्व करके तो वो फिर रिप्लाई बैक करते हैं। तो इस तरह पूरा सपोर्ट किया जाता है प्रोसेस में। तो अब लास्ट पॉइंट में करने के बाद फिर आपसे क्वेश्चन ले लेते हैं। पॉइंट यह कि कॉस्ट क्या है। तो इसके 4 पेपर जो हैं, टोटल इसकी कॉस्ट जो है ये ऑलमोस्ट $4,500 है। $4,500, जिसमें एग्जाम भी है, जिसके अंदर आप कोर्स मटीरियल भी है, इवेल्युएशन भी है, फीसेस भी हैं उनके रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट की। तो सारा मिलके इसका ब्रेकअप मैं कुछ इस तरह कर देता हूँ आपको कि अबाउट $250 आपके लगते हैं, इवेल्युएशन पे $100 आपके लगते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के, और फिर उसके बाद आपका कोई $1,000 या $900 चारों पेपर के, यानी पर पेपर अबाउट $225 to $250 आपकी नॉर्मल एग्जाम फीस है। तो नॉर्मल एग्जाम फीस है कि अगर आपने यूएस में एग्जाम देना है तो नॉर्मल एग्जाम फीस लगेगी, लेकिन अगर आपने इंटरनेशनली एग्जाम देना है तो नॉर्मल एग्जाम के फीस के अलावा आपको इंटरनेशनल टेस्ट फीस भी देनी है, वो पर पेपर $250 लगता है। तो 1400 तकरीबन वो बन गई। और जो हमारा कोर्स मटीरियल है ये सारी कॉस्ट टोटल जो है ये $1,900 है टोटल मटीरियल की कॉस्ट। वैसे 2000 है, लेकिन जो वेबिनार अटेंड कर देते हैं लोग उनकी $100 कंसेशन होती है, उनकी लमनाई तो हम ऑफर करते हैं।
تو وہ $100 کم ہو جاتا ہے. اس طرح سے $4,500 بنتا ہے. اچھا کئی لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ $4,500 جو ہے یہ کیا ہے, بہت زیادہ ہے کم ہے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں یہ وہ کوالیفکیشن ہے جو 150 کریڈٹ آورز امیرکن بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 150 اچھا امریکہ میں اس کورس کی فیس جو ہے $3,500 ہے, جو میں نے کہا آپ کو 2900 میں 1900 میں پاکستان میں مل جائے گا. یہ امریکن فیس $3,500 ہے. پاکستان میں چونکہ کرنسی ریٹ کافی انفیوریبل ہوتا ہے تو اسپیشل پرائسز ان سے نیگوشیٹ کی ہوئی ہیں 100% پروڈکٹ کی, تو $1,900 بن جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ میں اگر کسی انڈر گریڈ کورس میں آپ داخلہ لینا تو $25,000 تقریباً پر ایئر ہے. اگر ماسٹر میں لیں پوسٹ گریجویٹ میں داخلہ لیتے ہیں تو $35,000 پر ایئر. تو یہ $4,500 از نتھنگ, کیونکہ وہ اکاؤنٹنسی ایجوکیشن ورلڈ وائڈ بڑی سستی ہوتی ہے. رائٹ, جیسے میں یو کے میں گیا تھا کوالیفائی کرنے کے لیے, تو آئی واز ناٹ فرام اے ویری ریچ فیملی, بڑے ماڈرن فیملی تھی, لیکن کاسٹ اتنی زیادہ نہیں تھی تو فیملی افورڈ کر سکتی ہے. چلو 10 مرلے کا پلاٹ سیل کرو, بچے کو بعد دے, کام چل جاتا ہے. رائٹ, لیکن میرے کئی دوست ہیں ان کے بچے ابھی انڈر گریڈ کورس کے لیے یو کے گئے ہوئے ہیں, کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ 4 سال کی کاسٹ جو ہے $120,000 بن جاتی ہے. لیکن کاسٹ کام ہوتا ہے. یہ $4,500 میں اگر آپ کو ایک وہ کوالیفکیشن جو ماسٹر کے بعد ٹاپ اپ بنتی ہے تو وہ آ جاتی ہے, تو اٹس اے ورتھ انویسٹمنٹ, ٹائم اور منی انویسٹمنٹ ورتھ بائی. تو ود دس I just go for question. اگر کسی کا کوشچن ہو تو we will take up that. مجھے کوئی چیٹ باکس میں کوشچن ہے؟ میرے صاحب کوئی دوست کوشچن کرنا چاہتے ہیں؟ ایز آف ناؤ تو کوئی کوشچن نظر نہیں آ رہا جی, چیٹ باکس میں بھی کوئی کوشچن نہیں ہے. تو آئی گیس ان کو concept is clear about the CPA. تو what we will do, ہم ان کو ایک محمد کی طرف سے آیا, is it easy to do after MBA, یہ کوشچن آیا سر, اس کو آپ چیٹ باکس میں دیکھیے گا. The question is it easy to do after MBA? بالکل اس لیے ایزی ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ, میں جو کہوں گا ڈویبل ہے, بڑی اچھے طریقے سے ہینڈلیبل ہے, کیونکہ آپ کا جو نالج ہے اس کے بعد آپ کو پوری سپورٹ اگلے سسٹم میں جو ایجوکیشن کا سسٹم اس میں پرووائڈ کرنی ہے. تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایزیلی آپ ود یور ایفرٹس, یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ محنت نہیں کریں گے تو جو ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ٹائم ہے, جیسے میں کہتا ہوں کہ 150 آورز اگر پر سبجیکٹ بندہ ڈیووٹ کر دے تو ہر سبجیکٹ کو پاس کر سکتے ہیں, اور انہی لائن پہ جو کہ ہمارا سسٹم اس سے ریکوائر کرے گا تو وہ اس کو مینج کر سکتا ہے. یس, MBA کے بعد اٹس ویری مچ ڈویبل, اٹ نیڈز ایفرٹ اینڈ ڈویبل. جی Yes, sir, there is another question that how do you compare PhD in finance with CPA? Which finance? PhD. PhD finance. جی, with CPA. دو ڈفرینٹ کوالیفکیشن ہے, ایک اکیڈیمک کوالیفکیشن اور ایک پروفیشنل کوالیفکیشن. ٹھیک ہے, اور دونوں اچھی ہیں. ایک اپنی اکیڈیمک سائڈ کی ٹاپ کوالیفکیشن ہے, اور یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ ہے جن لوگوں نے ایجوکیشن میں جانا چاہتا ہے. اور کچھ پریکٹیکل فیلڈ میں بھی ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں, جیسے کسی بینک کو بھی شاید ایک آدھا ریسرچر رکھنے کی ضرورت ہو, لیکن زیادہ تر اس کی ڈیمانڈ جو ہے پھر اکیڈیمک سائڈ سے آتی ہے. سم ڈیمانڈ از دیئر, اور اس میں پروفیشنل کوالیفکیشن میں زیادہ ڈیمانڈ آپ کی فیلڈ میں آتی ہے اور کچھ اکیڈیمک میں بھی آتی ہے.
जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मियां साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम एकेडमिक साइड पे भी हैं, राइट। लेकिन ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट एकेडमिक साइड पे नहीं होंगे। तो अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। और फिर ये है कि जब आप पीएचडी भी करेंगे तो फिर पीएचडी आपने कर दिया है, आईपीएस से कर दिया पीएचडी, तो फिर आप जब यूएस जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो आई डोंट नो कि क्या उसका लेवल होगा, क्या एक्सेप्टेबिलिटी होगी। लेकिन ये तो जो हम क्वालिफिकेशन में बात हम कर रहे हैं, ये तो क्वालिफिकेशन टॉप ऑफ द वर्ल्ड है ना। जब हम मूव आउट ऑफ द कंट्री करेंगे, जितना जितना मूव आउट करते जाएंगे उतनी इसकी वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, बिकॉज इट्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। ये मेरा आंसर ये है कि एकेडमिक साइड की टॉप क्वालिफिकेशन में आ रहा है। इसका सर सीएफए के साथ भी कंपैरिजन का एक क्वेश्चन आया कि सीएफए के साथ कंपैरिजन। मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक साहब आए थे, वो सुनहरी बैंक में जॉब कर रहे थे। तो उन्होंने करियर प्रोग्रेशन की से बात की होगी, उन्होंने मेरा रेफरेंस कर दिया और मेरे पास आए, मुझे मिले, कहने लगे मैं सीएफए करना चाहता हूँ, मैं बैंक में काम करता हूँ। मैं कभी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? कहता मेरा ऑब्जेक्टिव है कि एक सेटिस्फाइंग जॉब हो, अच्छी अर्निंग हो और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हो। मैं कहा भाई यही है। कहता है तो मैं कहा यार तुम ऐसा करो, तुम सीपीए कर, सीएफए को छोड़ो। तो अल्लाह का बंदा अच्छा था, उसने मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा कि आप क्यों ये कहते ये आपकी एडवाइस है। मैंने कहा आपकी मेरी एडवाइस है, लेकिन पहले मुझे अपनी ट्रांसक्रिप्ट दिखाओ। उसने ट्रांसक्रिप्ट दिखाई। मैं आपको अकाउंटिंग के 1-2 कोर्सेज ऐड करने पड़ेंगे और वो भी आप लेटर ऑन कर दीजिएगा, अभी आप एग्जाम दे सकते हैं। उस वक्त ऐसी स्टेट्स मौजूद थी जो कम अकाउंटिंग आवर पे 12 पे, जैसे न्यू हैम्पशायर है, तो वो अवेलेबल इस तरह थी। तो मैंने कहा आप मेन थी, मैंने कहा मेन से काट। उसने शुरू किया, नाउ इज सीपीए, और वो मिडिल ईस्ट में बड़ा सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। तो मैंने उसको पूछा हुई थी, तो क्या मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मेरे बैंक में 3-4 लोग थे जो कह रहे थे कि हम सीएफए करने, तो मैं आपके पास आ गया था, मैंने सीपीए शुरू कर दिया। उनका ये है कि उनमें से 2 तो नहीं कर सकते, लेवल 2 तक पहुंचे हैं, उससे आगे नहीं गए, दे गॉट स्टार्ट अप। तो जो एक जो है अभी भी कहते स्ट्रगलिंग में है, उसने गिव अप नहीं किया, एक ने कर लिया हुआ है, एंड इज अर्निंग फार लेस देन मी। उसने मुझे कहा कि इज अर्निंग फार लेस देन मी। इस तरह मैंने एक दफा कैरियर काउंसिल कर रहा था, एक लड़का किंग एडवर्ड में एडमिशन उसका हुआ था, 2nd ईयर का एग्जाम होने वाले थे। उसने मेरी बात सुनी और मैं उसको पर सीए पाकिस्तान को प्रमोट करता था, उनका एम्बेसडर था पाकिस्तान का। तो उसने जी घर वालों से रिवॉल्ट कर दिया कि मैंने नहीं अपना खर्च करते हैं, मैंने ये लाइन तो काट दिया है। तो मैंने भी उसको समझाया कि यार ये उन लोगों के लिए है जो चूज करना चाहते हैं। आप तो बस लेके तो 200 किलोमीटर आगे जा चुके हो, आप वापस सीए की तरफ आना चाह रहे हो, तो मैं तुम्हें नहीं एडवाइस किया था। कहता नहीं सर, मैंने समझ लिया है कि मैंने ये ही करना है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि मेरे लिए फिट है, जो मेरी एम्बिशन लाइफ की है उसको फिट है मेरी। तो उसके पेरेंट्स को मैंने कहा भी इसको आने दो, करने दो। उसने किया, विद इन टाइम कर दिया सीए। और उसके बाद मैं उसको मिला एक दफा ना, 4-5 साल बाद जब उसने सीए कर दिया, मैं पूछा कि आजम खान उसका नाम था, लेट आजम खान, ही डाइड आफ्टर दैट। उसको कैंसर बाद में डायग्नोज हुआ, सीए करने के 15-20 साल बाद डाइड। तो मैंने उससे पूछा कि हाउ यू कंपेयर योर सेल्फ विद योर कुलीग जो मेडिसिन में रह गए। तो कहता सर नन ऑफ देम इज ऑफ माई लेवल, राइट। तो मैं इसी तरह सर्च करता होता हूँ। तो इसलिए मेरी एडवाइस है कि तो मेरे सामने मेरा अपना बेटा जो बैठ जाए कि मैं दोनों में इंटरेस्टेड तो क्या करूँ, तो मैं डेफिनेटली कैप उठा के सीपीए वाली के साथ पर रखूँगा। अलहमदा मेरे 2 बेटे हैं, दोनों सीपीए यूएस हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अलावा। तो मेरा व्यू तो ये है। बाकी हो सकता है आप किसी सीपीए से सीएफए से बात करें तो वो अदरवाइज आपको ज़्यादा एडवांटेज बता दे। लेकिन मेरी विद 35 ईयर एक्सपीरियंस इंटरनेशनली, लोकली, with a lot of qualifications and knowing lot of people, मेरी कंक्लूजन ये है कि कॉस्ट भी कम है, अचीवेबल बेहतर है, और कई सीएफए आप सीएफए करके वो काम नहीं कर सकते जो एज ए सीपीए कर सकते हैं, जब सीपीए करके वो काम कर सकते हैं सीएफए। Sir, there is one more question that if someone wants to remain in
work in Pakistan, is CPA US be a good choice? मैं समझता हूँ कि करंटली अगर मैं इस स्टेज पे कहूँ तो मैं समझूंगा कि सीए पाकिस्तान इज बेटर, लेकिन सीए पाकिस्तान आप नहीं कर सकते इस वक्त अपनी इस कंडीशन में 21 पेपर एंड 3.5 year एक्सपीरियंस आप नहीं कर सकते, जबकि सीपीए में 4 पेपर और 1 year का अपना पुराना एक्सपीरियंस ही काउंट हो जाए, वो आप कर सकते हैं उस पॉइंट से पहली बात। और लेकिन सीए पाकिस्तान हैज अ मच फार वैल्यू देन द सीपीए विद इन पाकिस्तान, लेकिन आउट ऑफ पाकिस्तान सीए पाकिस्तान के पास जल जाते हैं आउट ऑफ पाकिस्तान, राइट। मिडिल ईस्ट में कुछ हद तक अच्छे हैं, यानी क्या रहा मिडिल ईस्ट में अच्छी परफॉर्म दे रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में जब वो पूछें कि सीपीए को अपने से कंपेयर करें तो वो सीपीए यूएस को बताएंगे कि हालांकि ये कहेंगे प्रोफेशनली हम भी इतने अच्छे हैं लेकिन उनकी सैलरी हमसे डबल है ट्रिपल है, ये बताएंगे। तो मैं समझता हूँ विद इन पाकिस्तान तो सीपीए का वो लेवल नहीं है इस वक्त, लेकिन मुझे पता है कि आईकैप ने भी उनसे एमआरए करना है, डिजायर है उनकी, लेकिन उसमें 2 साल लग जाएंगे। जब वो एमआरए कर लेंगे तो सीपीए यूएस की भी वही वैल्यू पाकिस्तान में हो जाएगी तो इस तरह है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में आप रहते हुए कर लें तो आपके पास डबल इनकम, जैसे मियां साहब ने कहा कि अमेरिकन बेस्ड कंपनियां जो हैं वो आपको करें। दूसरा आप आउटसोर्सिंग की फैसिलिटी में जा सकते हैं और अपनी कंसल्टिंग उसमें जाएं, आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, आपके पास बेटर ऑप्शन। लेकिन अगर आपने जॉब करनी है, जैसे एक बंदा कहता है बैंक में जाना है, तो ज़्यादा सीपीए वुड बी गेटिंग बेटर सैलरी देन यू, लेकिन आपकी रेपुटेशन वुड बी एवरीवन नोज कि सीपीए यूएस जो है by sitting in Pakistan, what kind of qualification है जो इसका होल्डर है, उसकी क्या वैल्यू है, वो अवेलेबल है। लेकिन मैं कह रहा हूँ करंटली ये पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान, इसने कसम खाई है तो पाकिस्तान से बात नहीं किया, जिसने इतना भी वैल्यूएट नहीं किया कि मैं भी हालात मुझे दे जाएं तो फिर मैं कहाँ हूँ। मैं समझता हूँ कि इतनी 50% चांस हो कि दुनिया में बाहर हो सकता है जॉब या सेटलमेंट, तो फिर मैं समझता हूँ कि दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो आई विल। So there is one more question, that reciprocal qualification like CA Australia and New Zealand, in how much papers are to be appeared after CPA? MRA से relevant। पहली तो बात है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, अपनी अकाउंटिंग फर्म नहीं खोलनी, तो आपको कोई पेपर देने की जरूरत नहीं। ऐसे मुझे बहुत क्लियर पता है 3 कंट्री का, स्कॉटलैंड का, आयरलैंड का और कनाडा का, तो मुझे बहुत क्लियर पता है। और सर्टनली सो इज इन ऑस्ट्रेलिया। आपने कोई पेपर नहीं देना, एप्लीकेशन फाइल करनी है, आपने क्रेडेंशियल देने, आप मेंबर बन देंगे, लोकल सीए या सीपीए बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए आपका एक्सपर्ट नॉलेज जो है ना वहाँ लोकल टैक्स और लॉ में होना चाहिए। फिर आपको एक पेपर देना होता है, एक पेपर, ताकि आपका वो भी नॉर्मली मल्टीपल चॉइस होता है, ताकि आप वो कर लें और अपनी एक्सपर्टी वहाँ पे, नॉट अ वेरी हाई एक्सपर्टी, वर्किंग नॉलेज को कर दें, ताकि आपको वहाँ पर लाइसेंस की प्रैक्टिस मिल जाए। जिसने प्रैक्टिस नहीं करनी उसके लिए कोई पेपर नहीं है, बहुत से। ओके, ये मैं स्टेट वे दूसरी मैं ये बात बता, कई लोग कहते हैं कि जैसे 55 स्टेट हैं कि मैं किस स्टेट का सीपीए करूं, तो मैं कहता हूँ ये मैटर करेगा अगर आपने अमेरिका के अंदर जाना है और वहाँ प्रैक्टिस करनी। अगर आपने अमेरिका के अंदर नहीं जाना, वर्ल्ड में फिरना है या अमेरिका में भी जाके जॉब करनी है, तो डजंट मैटर आपके स्टेट के सीपीए। लेकिन हाँ, अगर आप कैलिफोर्निया में जाके प्रैक्टिस करनी है, आपने इलिनॉइस में प्रैक्टिस करनी है, अपना ऑफिस खोलना है अकाउंटिंग का, फिर आपको इलिनॉइस का लाइसेंस चाहिए। तो वो आप दूसरी स्टेट का लाइसेंस ले लेते हैं, अल्टीमेटली वो ट्रांसफरेबल होता है विद पेइंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फीस, लाइक लेस देन $50 आप पे करते हैं, आपकी फाइल रेलेवेंट स्टेट को ट्रांसफर हो जाती है। Last question is CPA accepted by ICAP? मैंने कहा कि इस वक्त एक्सेप्टेबल है उनका इंटरमीडिएट लेवल का। इस वक्त जब वो एमआरए करेंगे तो फुल एक्सेप्टेंस में जाएंगे, जब तक एमआरए नहीं करते तो उन्होंने इसको इंटरमीडिएट लेवल पे। हर कंट्री जब तक उसकी रिलेशनशिप डेवलप ना हो तो कोशिश करता है कि कोई और क्वालिफिकेशन ज़्यादा प्रमोट ना हो उसकी जुरिडिक्शन में,
इस वक्त इंटरमीडिएट लेवल तक टू एक्सेप्ट। इसी को थोड़ा सा उन्होंने मजीद इलैबोरेट किया है कि टू रजिस्टर और ओपन ऑन फर्म आफ्टर सीपीए इन पाकिस्तान व्हाट इज अदर रिक्वायरमेंट। दोबारा बोलेंगे था सर वो जानना ही चाह रहे हैं कि यूएस सीपीए कर लिया है, तो अब यूएस सीपीए करने के बाद वो अगर अपनी फर्म पाकिस्तान में खोलना चाहते हैं तो मजीद क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे? वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरह वो ऑडिट वाली फर्म नहीं खोल सकते, कंसल्टिंग की फर्म खोलने उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आप आउटसोर्सिंग के लिए अपनी कंसल्टिंग फर्म बनाना चाहते हैं, कोई रिक्वायरमेंट, यू आर एलिजिबल टू परफॉर्म दैट। वो आपके पास सर्टिफिकेट है, दीवार के पीछे लगाए अपनी बड़ा करके। मेरे बेटे के बहुत बड़े बड़े मेरे ऑफिस में पड़े हुए हैं, लगाए नहीं अभी, दफ्तर चेंज किया है, तो वो अपने उनका टैका बहुत होता है जो पीछे लगे होते हैं, तो वो आपको कुछ नहीं करना। हाँ, आप यहाँ ऑडिट नहीं कर, ऑडिट करने के लिए पाकिस्तान का कंपनी एक्ट 2017 जो है वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कुछ हद तक छोटी फर्म में कॉस्ट मैनेजमेंट को राइट देता है। बाकी कोई भी यहाँ पे, यानी इंग्लैंड का चार्टर्ड अकाउंटेंट भी पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अगर मैं इंग्लैंड से चार्टर्ड अकाउंटेंट किया तो मैंने आई कैप का मेंबर बना हूँ ताकि मैं एलिजिबल हो जाऊँ कि पाकिस्तान में मैंने ऑडिट प्रैक्टिस करनी है। अगर मैंने मैनेजमेंट कंसल्टेंट करनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज देनी है, आउटसोर्सिंग सर्विस देनी है, आई डोंट नीड एनी अदर सर्टिफिकेट, दिस सर्टिफिकेट सफिशिएंट। ठीक है सर, no more question in the chat box, and if there is any question, if someone wants to ask question directly by unmuting their mic, most welcome. Otherwise, recording of this session and the earlier session would also be available that we can share with the alumni office bearers. मियां वकास साहब अगर मौजूद हैं तो मियां वकास साहब आपके साथ ये वाला भी हम सेशन जो है वो शेयर कर देंगे, तो you can provide a copy of this recording to them. जी सर, इंशाल्लाह हम आपकी सारी रिकॉर्डिंग जो है वो कल अपलोड भी कर देंगे अपने YouTube चैनल पे भी और अदर सोशल मीडिया चैनल्स पे। जी ठीक है जी, तो थैंक यू। हमारी पहले वाली जी सर दोबारा बोलिएगा। मैंने कहा इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग तो आपको मिल गई होगी हमारी। जी सर वो मिल गई है जी, ये मुझे इंशाल्लाह कल तक मिल जाएगी, तो हम इसको दोनों को शेयर कर दें। ये उर्दू मीडियम भी आपको मिल जाएगी। जी बिल्कुल, ये ज्यादा क्लैरिटी देगी इंशाल्लाह बच्चों को जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वकास साहब, थैंक यू वेरी मच जी फॉर योर ऑल द एफर्ट्स जो यू मेड पॉसिबल कि हमने कुछ ओरिएंटेशन दी है स्टूडेंट्स को, अलुमनाई को, तो इंशाल्लाह वी विल रिमेन इन कम्युनिकेशन इंशाल्लाह सर। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, मकबूल साहब का बहुत ज्यादा शुक्रिया जी, उन्होंने बड़ी एफर्ट पुट इन की और बड़ा लंबा सेशन दिया आज भी। बड़ी मेहरबानी। मैं तो आपको ऑफर वक्त आप जो आपके फाइनल सेमेस्टर के लोग हैं वीडियो और एमबीए के, आप इन पर्सन वेबिनार करना चाहें तो हम हाजिर होंगे, अपनी सोसाइटी के लिए भी करना चाहें। देखें ये काउंसलिंग हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों को सही गाइड करना। और मैं समझता हूँ कि कोई बीबीए एमबीए करके अगर 6-8 महीने का कोर्स है, साल लगता है, 8 महीने से साल लगता है, और टॉप क्वालिफिकेशन के लिए तो उससे बड़ी हमारी क्या सर्विस हो सकती है। सर इंशाल्लाह जी मेरी मियां साहब से बात हुई थी इस सिलसिले में, और इंशाल्लाह हम जैसे ये थोड़ा सा प्लान जरा थोड़े से बेहतर होते हैं यूनिवर्सिटी के, पोस्ट कोविड हालात आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो रहे हैं जी, तो इंशाल्लाह हम फाइनल जो पासिंग आउट सेमेस्टर्स हैं उनके लिए ये ऐसे सेमिनार्स अरेंज करते रहेंगे इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। थैंक यू सर। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच वकास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज।